A very good morning and Jai Hind to one and all. Students, today we'll start the exercises of chapter number 2, fractions. There are two exercises in this chapter. The first one is based on multiplication of fractions and the second one is based on division of fractions. Okay, so we'll start with exercise 2.1. The questions which I have marked in circle, only these questions you have to do in your fair copy. Rest of the questions are for your self practice. Okay, so we'll start with exercise 2.1. Question number first, A part. Find the product. The question is find the product. So product means we have to multiply. So we have to multiply 4 by 9 by 3 by 2. We know the method. We have already studied these type of questions. What we'll do in this type of questions? Multiply numerator with the numerator part and denominator with the denominator part. Students, before multiplying, just check if anything is getting cancelled or not. 3 ones are 3, 3 threes are 9, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Okay, so here the answer is 2 by 3. 2 ones are 2, 3 ones are 3. So the answer is 2 by 3. Is it clear? Now D part. It is 8 by 9 into 3 by 4. Again the numerator part will be multiplied by the numerator part and the denominator part will be multiplied by the denominator part. 3 ones are 3, 3 threes are 9, 4 ones are 4, 4 twos are 8. So here 2 is left, here 1, here 3 and here 1. That means 2 multiplied by 1 is 2, 3 multiplied by 1 is 3. So the answer is 2 by 3. Okay. Now let's move on to question number second, A part. The question is we have to multiply 1 by 17 into 7 whole 2 by 7. That means there is one number which is fraction and the second one is mixed fraction. Okay, the first one is proper and the second one is mixed fraction. So what we'll do in this type of question, just convert this mixed fraction into improper one. How it is converted? Multiply this number by this number and add it to this number. 7 sevens are 49 and 49 plus 2 is 51 by 7. Okay, sorry, here 17 is there, 1 by 17. Okay, just check if anything is getting cancelled. Yes, in 17 table 17 threes are 51. So what is left here? 1, here 3. 1 threes are 3 and in denominator 1 sevens are 7. Okay, now D part. The D part is 74 multiplied by 4 whole 3 by 70. This is the question. Again we'll convert this mixed fraction into improper one. 17 fours are 68. 68 plus 3 is 71 by 70. Okay. Now what you will do, just check if anything is getting cancelled. No, in 17 table 74 doesn't come. So what we'll do, just multiply it. 74 into 71 by 1 into 70. Okay. So what you will do, you will multiply this number by this number, write your answer here and in denominator part 17. Okay. When you will multiply 74 by 71, your answer will come 5254 by 17. Okay. Now what you will do, just convert this improper fraction into mixed fraction by dividing it. Okay, and writing it into mixed fraction. Now let's move on to question number 3. Find the product. Again we have to do the same thing, but here 3 fractions are there, students. So no need to worry. If 3 fractions are there, no problem. Just recall, if you can multiply 2 and 3, then you can also multiply 2, 3 and 5. Okay, what is the method? Just first multiply 2 numbers. What the answer of this, then the answer will be multiplied by the third number. Okay, but before multiplying, students, I will again tell you, just check if anything is getting cancelled or not. Why we are doing this? Because it decreases the complexity of question. Okay, if anything is getting cancelled, it decreases your calculation. 7 multiplied by 7 multiplied by 16. Just check if anything is getting cancelled. 7 ones are 7, 7 twos are 14. 4 ones are 4, 4 fours are 16.
then 2 ones are 2, 2 twos are 4, and 2 cancel. Okay, so in numerator part only all numbers are got cancelled. Okay, so only 1 is left, and in denominator here 7 is left, so the answer will be 1 by 7. Okay students, now part number D. Part number D is 13 by 19 multiplied by 57 by 65. Okay, we have to multiply this number. So again we'll check if anything is getting cancelled or not. Yes, for that you should know the table at least up to 20. 13 ones are 13, 13, 5s are 65, and 19 ones are 19, and 19 3s are 57. So 1 into 3 is 3, 1 into 5 is 5. The answer is 3 by 5. Okay, that is the benefit of cancelling the number before multiplying. If your method is like this, first you multiply the number then cancel, it is the longer method. So just before multiplying, just check if anything is getting cancelled. Okay, is it clear to you? Question number 3 up to question number 3. Now question number 4. I think students you can do this question very easily. Multiply the fractions with the help of diagram is written here. Okay, so no need to make diagram, just multiply. Of means multiply, no need to draw diagram. Okay, just multiply. 1 by 2 in place of multiply will come, and 2 by 3. Just multiply it, you can easily tell the answer. 2 will be cancelled by 2, 1 by 3 is the answer. Here 3 is multiplied by 3, 1 by 4 is the answer. Okay, now let's move on to question number 5. You can all easily do students. Multiply and convert into mixed fraction. इसमें आपको स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है. कैंसिल हो रहा है, कैंसिल देख लीजिए और मल्टीप्लाई करिए और आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके, और यहाँ पे स्पेशली मेंशन है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल करना ही है. पर पुराने जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको इसलिए बोला, जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है हमको आंसर उसी फॉर्म में देना होता है. अगर क्वेश्चन में एक भी नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो जो आंसर आता है उसका आंसर हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना चाहिए. ओके, अगर आप उन क्वेश्चंस में नहीं भी करते हो तो दैट्स ओके, बट यहाँ पर स्पेशली अगर लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन यू हैव टू मैंडेटरी कन्वर्ट द आंसर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विल डू क्वेश्चन नंबर 6. 5th तक आप इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम बहुत बार कर चुके हैं. 2 whole 3 by 4. You have to find the reciprocal of this number. ओके, सो रेसिप्रोकल के लिए पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा. सो 4 2s are 8, 8 plus 3 11 by 4. So reciprocal will be reciprocal of 11 by 4 is 4 by 11. रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में. नाउ सी पार्ट. In this question I have marked 3 parts. 17 है स्टूडेंट्स. अब 17 का रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप 17 को ऐसे कंसीडर कीजिए 17 by 1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मानते हैं. अब इसका रेसिप्रोकल करना है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी 1 by 17. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. ओके, नाउ डी पार्ट. डी पार्ट इज 6 by 11. ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो सिंपल सा दिख रहा है हमें, बस 11 ऊपर आ जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. दिस इज द रेसिप्रोकल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7 we will do all parts. Okay, 3 parts we'll do it in this video, and the D part will be in your homework. Okay, this is your homework part. Simplify 5 by 9 minus 12 by 45 into 5 by 3. We have to simplify this. So how we will simplify students? Firstly we'll solve the bracket. You all know Bodmer's rule. We have to first solve the bracket, then divide, then multiply, then addition, then subtraction. So
for subtracting two fractions we have to see the either they are like fraction or unlike fraction. These are unlike fraction because denominators are different. So what we'll do, we will take the LCM of 9 and 45. Okay, so the LCM of 9 and 45 will be, यहाँ पे आप निकाल लीजिए शॉर्ट में, 3 3 are 9, so 45. The LCM of 9 and 45 will be 45. So हम क्या करते हैं, पहले नंबर को डिनोमिनेटर में 45 बनाना है तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 9 5 45 हो जाएगा. एंड द सेकेंड नंबर इज 45 ही है सेकेंड नंबर, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 5 5 25 माइनस 12 अपॉन 45. एलसीएम ले लिया हमने. ठीक है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 5 25 आ गया, 9 5 45. देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया एलसीएम लेने के बाद. ठीक है, इंटू 5/3, इसे माइनस करिए, 5 - 2 is 3, 2 - 1 13, 45, 5/3. आप चेक कर लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है. 5 9 45. नाउ आंसर विल बी 13/9 3 27. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू कैसे सॉल्व करना है. नाउ बी पार्ट. B part is 15/19 plus 12/57 into 34/70. This is the question. Okay, so again we'll check, again we'll solve bracket first, and we know that 19 is the 57 is the multiple of 19. मल्टीपल ऑफ 19 मतलब 19 की टेबल में 57 आता है 3 times. दैट मीन्स हम इसे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा. ये वही मेथड है स्टूडेंट्स एलसीएम वाली. अब आपको आदत हो जानी चाहिए फास्टली करने की. 15 3 45, 9 3 19 3 57. देखिए बिल्कुल सेम बन गया है. आप वो एलसीएम वाली मेथड से करेंगे तब भी आपका यही आएगा. मैंने डायरेक्टली कर लिया. अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए 57/57 इंटू 34/70. ठीक है, अब देखिए दोनों का सेम हो गया तो कैंसिल हो सकता है 1 टाइम. सो द आंसर विल बी 34/70. ओके, और यहाँ पे 17 2 34. अगेन आंसर इज 2. ठीक है, समझ में आया कैसे करा. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट इज 2 - 1/5 into 2/3. This is the question. How we'll do, we'll take the LCM. The LCM of 1 and 5 is 5. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर में डिनोमिनेटर 5 बनाना है तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. माइनस सेकेंड नंबर तो एज इट इज ही रहेगा. सो 5 2 10 - 1/5 into 2/3. 10 - 1 is 9. 5 into 2/3. 3 3 9. So 6/5 is the answer. Okay, now let's move on to question number 8. Now question number 8 is a word problem students. The length and breadth of the rectangle are 4 whole 1/5 meter and 3 whole 2/3 meter respectively. Find the area of the rectangle. We have to find out area of the rectangle. Okay, so I am solving it directly. You will write like this: length of the rectangle equal to this, breadth of the rectangle equal to this, area of the rectangle, we know the formula, length into breadth. Okay students, I am solving it directly, but you have to solve it systematically. Don't copy only this part from the video. Okay, just solve it systematically. We know that area equal to length into breadth. Here length is 4 whole 1/5 into breadth is 3 whole 2/3. Okay, so we have to directly multiply it. So what we'll do, firstly we'll convert this mixed fraction into improper. 5 4 20 plus 1 21/5. 3 3 9 10 11/3. चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है. 3 1 3 3 7 21. 77/5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया स्टूडेंट्स. ठीक है, इस एरिया को, ये जो आंसर आया इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना डिवाइड करके. आपको आता है सबको कैसे कन्वर्ट करते हैं.
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप सिस्टमेटिकली करेंगे, मैंने डायरेक्टली करा हुआ है, आप सिस्टमेटिकली करेंगे इसे। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज इन योर होमवर्क। 9th क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में ही करेंगे, पर आप खुद करेंगे होमवर्क में। ठीक है, इसे नहीं छोड़ना है, सिर्फ 10th और 12th आप छोड़ेंगे, 11th वाला मैं अभी करा रही हूँ आपको। ठीक है, रोनित टेक्स 3/4 आवर्स टू क्लीन अ होटल रूम। ठीक है, रोनित क्या करता है, 3/4 आवर्स इतना टाइम लेता है टू क्लीन अ होटल रूम। एक होटल रूम को क्लीन करने के लिए इतना टाइम उसे लगता है। इफ ही वर्क्स नॉन स्टॉप फॉर 6 आवर्स, अगर उसने 6 आवर्स तक लगातार काम किया है तो वो कितने रूम क्लीन कर पाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सो व्हाट विल डू, शॉर्ट में लिख लेती हूँ, 1 रूम टू क्लीन 1 room, how much time he takes, 3/4 hours. Okay, so number of rooms he can clean in 6 hours. 6 hours पूछा हुआ है। ठीक है, तो in 6 hours number of rooms he will clear is 6 divided by 3/4. ओके, यहाँ पर डिवाइड होगा, ऐसा मत सोचना मल्टीप्लाई की एक्सरसाइज है तो मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि वो 6 आवर्स तक कंटिन्यूसली काम कर रहा है। तो डिवाइड का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, सो 4 2 8 रूम्स। 8 रूम्स वो क्लीन कर पाएगा अगर उसने 6 घंटे तक काम किया तो। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आप कॉपी में कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन को आप करेंगे खुद होमवर्क में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आ जाइए 2.2 पे, शॉर्ट में कर लेते हैं हम लोग। ये आप इजीली कर सकते हैं, मैं एक करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। फर्स्ट का ए पार्ट देखिए कितना इजी है, 3 डिवाइडेड बाय 1/3। इसमें हमें डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। सो 3 3 9, आंसर इज 9। 9 भी लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला भी आप स्टूडेंट्स कर सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना, 1/3 को 3/1 लिख देना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है, कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। सेम यू कैन डू एफ पार्ट एंड एच पार्ट, जो सर्कल लगाए हैं सिर्फ वही पार्ट आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसके आंसर की भी शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर की का पिक क्लिक करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लेना आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये होमवर्क में आप करेंगे, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में करना है मतलब कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। 2 पार्ट्स में आपको करा देती हूँ। ठीक है, ए पार्ट, 3rd का ए पार्ट क्या है, 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। सेकेंड नंबर इज 1/3, इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, 2 का। ठीक है, तो 1/3, 1 × 3 is 3, 2 3 is 6, 2 1 is 2, 3 2 is 6। ठीक है, आप सबके डिनोमिनेटर 6 बन गए। अब हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 is 5/6, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई, 5/1 की जगह पे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 1/6। ठीक है, बी पार्ट, 7 डिवाइडेड बाय 1 होल 5/7 + 2/7, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें प्लस करना है, तो पहले आप ऐड कर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 7 1 is 7, 8 9 10 11 12/7 + 2/7, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 14/7। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 1 is 7, 7 2 is 14। 7 डिवाइडेड बाय 2 बोला है स्टूडेंट्स, या ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो,
7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट भी इजी है, देखिए आप इजीली कर सकते हैं सी पार्ट को। कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिए, बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी पार्ट में 3 नंबर्स हैं, सो नो नीड टू वरी, जस्ट ऐड दिस 3 नंबर। एलसीएम ले लो 8 और 5 का, 40 आएगा। इसका डिनोमिनेटर 40 बनाइए, इसका भी 40 बनाइए, इसका भी 40 बनाइए। ठीक है, इसमें 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ पर भी 8 से और यहाँ पर 5 से। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर जब सेम बन जाएंगे तो ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है उन्हें ऐड कर दो सबको, अपॉन में 40 इंटू 8 कर लेना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगी। नाउ विल फोकस ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है क्वेश्चन में, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस नंबर में मैं क्या डिवाइड करूं कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है, तो आपने अभी सिंपल इक्वेशन में एक्स वाली मेथड सीखी है, लेट एक्स मस्ट बी डिवाइडेड। मैंने लिख दिया एक्स मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, एक्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से। 4 होल 3/4 से मैं एक्स को डिवाइड करूंगी और मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, 2 गेट लिखा है ना स्टूडेंट्स, 2 गेट का मतलब होता है ये वाला, तो इक्वल टू किधर ये आएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली कि हम इस नंबर में x का डिवाइड करने पर ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 इज 19/4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये समझ में आई इक्वेशन कैसे बनाई। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स x वाली मेथड ही यूज करनी पड़ती है। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली होती है ना, उसमें हमें x वाली मेथड यूज करनी होती है, वो इजी होती है। ठीक है, तो हम x को मान लेते हैं कि x मस्ट बी डिवाइडेड, तो इस नंबर में x का डिवाइड करा तो हमें ये मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये डिवाइड में है ना यहाँ पर, अब हमें सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन में हमें इधर ले जाना आता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए पहले ये समझिए क्वेश्चन, ये ऐसा है। अब आप ये मत सोचना ये डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में होगा। इसे देखिए 19/4 डिवाइडेड बाय x है ये। ठीक है, 19/4 तो एक नंबर है, एक फ्रैक्शन नंबर है, इसे यहां लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय x है इक्वल टू 5/3। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब ऐसे नंबर होते तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे, तो 19/4x। ठीक है, या सिंपल सी बात है, आप ऐसे मत करिए, आप कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ऐसा करो, देखो 19 डिवाइडेड बाय x है ना, 19/4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5/3। ये है क्वेश्चन। अब हमें पता है कि डिवाइड कैसे करोगे किसी भी फ्रैक्शन को, ये x है तो डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई, ये x है तो ये x/1 मान लेंगे, तो ये 1/x हो जाएगा इक्वल टू 5/3। इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, उस मेथड में मत जाओ, वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई लिख लिया, x/1 को 1/x, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये तो हमें आता है फ्रैक्शन को डिवाइड करना। ठीक है, अब हमें देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये x को उधर ले जाना है और इसको इधर, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं इसको। या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये 3 यहाँ डिवाइड में है, तो जब इक्वल टू के उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड आ जाएगा, और ये x यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, x को यहाँ करूंगी, 3 को यहाँ ले जाएंगे और 5 को नीचे। 19 इंटू 3/4 इंटू 5 इक्वल टू x। ठीक है, तो 19 आप कैंसिल देख लीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, नो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो 9 3 जा 27, 57/20 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 57/20। अब शायद कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं एक और मेथड बता देती हूँ। देखिए एक क्वेश्चन करने की बहुत मेथड होती है, इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना इधर उधर कैसे करा, तो आप क्या करिए, 19 इंटू 1 था और 4 इंटू एक्स, ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने डिवाइड करा x/1 और फिर 1/x लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, 19 इंटू 1 लिखिए, 19 आएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x, ये तो आता है।
इतना तो आता है सबको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अभी इधर उधर कुछ नहीं भेजा है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब तो आप भेज सकते हो इधर उधर, ये तो हमने करा है। देखिए ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 19 इंटू 3 और यहाँ बनेगा 5 इंटू 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 19 इंटू 3 कितना होता है 57 और यहाँ 5 4 20x होता है। ठीक है, अब पर मुझे x ही चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई वेरिएबल और कोई कांस्टेंट एक साथ ऐसे लिखे होते हैं मतलब वो मल्टीप्लाई में है। दैट मीन्स 20 को इधर ले जाना है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 57/20। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, दो मेथड बता दिए, जिसको जो इजी लग रही है वो करो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट 1। हम इस नंबर पे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। तो अगेन लेट x मस्ट बी मल्टीप्लाई। ठीक है, किस में नंबर में मल्टीप्लाई करना है 9 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1, ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसमें हमें x का मल्टीप्लाई करना है कि हमें 1 मिले। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को होल में कन्वर्ट करिए। 9 3 27, 28 29 बाई 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये 29 इंटू एक्स 29x बन जाएगा, यहाँ 3 इक्वल टू 1। अब ये 3 डिवाइड में है तो इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब 29 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3/29 इज द आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट मीन्स 3/29 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। आप चेक कर सकते हो इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे 29/3 था, इसे सॉल्व करके और ये आया 3/29। इन दोनों को देखो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। चेक करने का तरीका है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सुनैना हैड 3 पिज्जाज, शी शेयर्ड पिज्जाज विथ हर फ्रेंड्स। सुनैना के पास 3 पिज्जाज थे, उसने पिज्जाज अपने फ्रेंड्स से शेयर किए। ईच ऑफ देम एट 3/7 ऑफ अ पिज्जा, हाउ मैनी फ्रेंड्स एट द पिज्जाज। ठीक है, मतलब उसके पास टोटल 3 पिज्जाज थे, उसमें से उसने अपने फ्रेंड्स को शेयर कराया और हर फ्रेंड ने 3/7 ऑफ द पिज्जा खाया। ठीक है, तो उसके पास कितने फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ पिज्जाज, कितने पिज्जा थे उसके पास 3। फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा ईटन बाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ने कितने पिज्जा खा लिए 3/7, तो टोटल ये थे उसमें से इतने खा लिए। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 3/7 नंबर ऑफ फ्रेंड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स निकालना है तो 3 डिवाइडेड बाय 3/7। सो डिवाइड हमें पता है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 7/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 7। ठीक है, पिज्जा उसके पास टोटल 3 थे, हर फ्रेंड ने 3/7 पिज्जा उसमें से खाया है। तो कितने उसके फ्रेंड्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ पिज्जा 3 थे, तो 3 डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, रूबी वॉक्स 3 होल 3/4 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 आवर, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर, डज शी कवर इन 1 आवर। मतलब इतने घंटे में रूबी इतना चलती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, इन 2 होल 1/2 आवर्स शी वॉक्स 3 होल 3/4 किलोमीटर। ठीक है, सो इन 1 आवर शी विल वॉक, ये नंबर तो एज इट इज आएगा, इसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, ज्यादा का दिया हो कम का निकालते तो हम डिवाइड करते हैं, और कम का दिया हो ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12, 13 14 15/4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 1 5/2। डिवाइड करना आपको आता है अच्छे से, 2/5, 5 3 15, 2 2 4, दैट मीन्स 3/2 किलोमीटर। 1 घंटे में वो इतना चलेगी। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन, the weight of 12 books is 15 whole 2/3 kg, find the weight of 1 book। 12 बुक्स का वेट दिया है इतना, एक बुक का निकालना है। ठीक है, तो
वेट ऑफ 12 बुक्स, ये कितनी दी है स्टूडेंट्स? 15 होल 2/3 kg, ठीक है। तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 बुक विल बी, एक बुक की वेट कितनी हो जाएगी? 15 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 12। 15 3 ज़ा 45, ये हो जाएगा 47/3 इंटू 1/12। इसे सॉल्व कर लीजिए। 47/12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो इसका वेट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 47/36। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, इतने केजीज का वेट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन हमने बेटा पहले PQ में करा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन, आप उसमें से मेथड देख लीजिएगा और इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्टली आपको कराए हैं, ये आपको सिस्टमैटिक तरीके से करना है कॉपी में, फेयर कॉपी में, ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।